خدا کا وقت اگر کھا جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا سے پیار نہیں کرتے، ظاہری چیزیں۔ بہرحال یہ بات کی باتیں ہیں۔ آج کا جو کلام ہے یہ کوئی بشارتی کلام نہیں ہے، بشارتی واعظ نہیں ہے، بلکہ ایک تعلیمی واعظ ہے جس کے متعلق بہت دیر سے ہمارے جو علماء ہیں وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سب پاسبان ہیں اور آپ کے لیے اہم ضرورت ہے اس کی۔ آپ لیڈرز ہیں، اور اگر آپ لیڈر ہیں، آپ کے لب جو ہیں یہ خداوند کے مسئلہ ہیں کہ لوگ آپ سے شرعی مسائل پوچھیں اور آپ ان کو مطمئن کریں۔ اس لیے شرع کو جاننا، کلام کو جاننا یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو آئیے آج ہم خداوند کے پاک کلام سے ایک خاص چیز کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے ساتھ نکالیے خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ جو یوحنا عارف کی معرفت ہم تک پہنچا، اس کا 13واں باب اور اس کی 16، 17 اور 18 آیت۔ خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ جو ہمیں یوحنا عارف کی معرفت پہنچا، اس کا 13واں باب 16ویں، 17ویں اور 18ویں آیت۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں اور غریبوں، آزادوں اور غلاموں کے داہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ گرا دی، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کے نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔ اس کا عدد 666 ہے۔ آج کل ہم 666 کو لے کے طرح طرح کے رنگ برنگی تفاسیر سن رہے ہیں۔ کوئی کسی دوسرے چرچ کو نشانہ بنا رہا ہے، کوئی کسی منسٹری کو نشانہ بنا رہا ہے کسی تفسیر کو لے کے، کوئی کسی کو شخصی طور پر نشانہ بنا رہا ہے۔ لیکن آج ہم سیکھیں گے کہ خدا کے کلام میں اصل میں یہ چیز کیا ہے، 666، اس کی ویلیوز کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی حیات اقدس میں جب وہ زمین پر میرے لیے آئے، مجسم ہوئے، تو انہوں نے اپنی زمین پر خادمانہ زندگی میں معمولی سا ٹچ دیا۔ عیسائی متی کے انجیل اس کا 24ویں باب میں ہلکا سا ٹچ دیا صرف اس مضمون کو، اور باقی سارے کا سارا اپنے شاگردوں کے لیے چھوڑ دیا کہ باقی سارا کام میرے شاگرد کرنے کے۔ آپ سب کیا ہیں؟ آپ نے کبھی مکئی کا دانہ دیکھا؟ اگر اس کو کچی ریت میں ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ جتنا مزے ہوگا کچھ، لیکن وہی دانہ اگر گرم ریت میں گرے پھر کیا ہوگا؟ اچھلے گا دم اوپر اور پھول کے اتنا سا ہے، اتنا سارا ہو جائے گا۔ میں اس کو مکئی کا دانہ پھلا، کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ پھلا۔ اسی طرح اگر خدا کا کلام ٹھنڈے لوگوں میں گرتا جائے گا تو شاید وہ ویسے کا ویسے رہ جائے گا۔ گرم ہوئیے،
میرے ساتھ ٹچ میں رہیے. جب تک پوچھا جاتا ہے یکدم آپ کی طرف سے سوال کا جواب آنا چاہیے. یکدم میری بات کی تائید کا خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے آپ کا وہ کھلنا چاہیے، تاکہ ہمیں احساس رہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تھوڑا سا بتایا اور باقی کام شاگردوں کے لیے یعنی آپ کے لیے چھوڑ دیا خدا نے. 12 شاگردوں کے لیے نہیں، ان کے ساتھ آپ بھی خدا کے کیا ہیں؟ ہم سب شاگرد ہیں، اور یہ ہمارے لیے خدا نے چھوڑ دیا. اور آج ہم اس وقت میں گزر رہے ہیں جب ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ 666 ہے کیا. لوگ جاننا چاہتے ہیں اس کے آنے سے ہوگا کیا، اس کے آنے سے دل کی حالات، دنیا کے حالات، شہروں کے حالات، خاندانی حالات، ان سب کے اوپر اثر کیا ہوگا اس کا، 666 کا، 666 کا. اور جو کہ ہم نے پڑھا مکاشفہ کی کتاب اس کے 13 باب میں سے اب وقت آ پہنچا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب اس وقت کے پورے ہونے کا وقت ہو چکا ہے. پیدائش کی کتاب کو جو ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ سیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ خدا نے اس پوری دنیا کو تخلیق کیسے کیا، اس دنیا کو خوبصورت کیسے بنایا، اس دنیا کے اوپر ساری حیات جو ہے، سارا جو کائنات ہے، یہ کیسے خلق کی خدا نے. ایک ایک چیز جو ہے تفصیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ ہمیں بتائی جاتی ہے. مگر جو پیدائش کی کتاب ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ دنیا، وہ خوبصورتی، وہ سارے مناظر، وہ ساری خوبصورت چیزیں جو خدا نے پیدائش میں بنائی تھی ان کا اختتام کیسے ہوگا، ان کا خاتمہ کیسے ہوگا، یہ ہمیں مکاشفہ کی کتاب بتاتی ہے. اور مکاشفہ کی کتاب نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر واحد نبوتی کتاب ہے، ایک ہی نبوتی کتاب جو خدا نے اپنے شاگرد یوحنا پر ظاہر کیے اپنے بھیج. مکاشفہ کا مطلب ہے چھپی ہوئی بات کا سامنے آ جانا. مکاشفہ کا مطلب ہے بھید کا کھل جانا. مکاشفہ کا مطلب ہے کہ جو چیز پوشیدگی میں تھے اسے پکڑ کر سامنے لے آنا تاکہ دوسرے اس کو جان جائیں. اور یہ سارا بھید خداوند نے اپنے شاگرد یوحنا پر ظاہر کیا جب وہ پتمس کے جزیرے میں گئے. بہت سے لوگ جو کہ بائبل کو شاید غور سے پڑھتے نہیں، اتنا علم نہیں رکھتے، وہ اکثر اپنی کلیسیا کے لوگوں کو کہتا نہیں مکاشفہ کی کتاب نہیں پڑھنی چاہیے. مکاشفہ کی کتاب ہے، مکاشفہ کی کتاب کلیسیا پاسٹر ڈال رہے ہیں مکاشفہ کی کتاب پر کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ یہ خدا کے کلام میں لکھی ہوئی ہے، یہ خدا نے خود اپنے بھیج دیے ہیں. تو مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ اس کتاب کا پڑھنے والا، اس کتاب کا سننے والا اور اس کتاب کی باتوں پر عمل کرنے والا مبارک ہے. تو کیوں ہم روکتے ہیں لوگوں کو مبارک ہونے سے؟ کیا رائٹ ہے میرے پاس، کیا حق ہے میرے پاس کہ میں لوگوں کو روکو کہ تم مبارک نہ ہو جانا کہیں، مکاشفہ کو نہ پڑھنا کہیں، تمہیں خدا کے بھیدوں کی سمجھ نہ آ جائے کہیں؟ لیکن یہ میں کہنا چاہتا ہوں یہ ان پاسبانوں کے وسیلے ہوتا ہے جو خود کلام کو سمجھتے نہیں، غور سے پڑھتے نہیں. آج جو ہمیں حوالہ پڑھے
مکاشفہ کی کتاب میں ہم اسی پر آئیں گے. یہ حیوان کا عدد ہے، کسی گھوڑے کا نہیں، کسی بیل کا نہیں، کسی گدھے کا نہیں، کسی سور کا نہیں، بلکہ یہ ایک نظام کا نام ہے، انسان کا عدد ہے، اور یہ ایک نظام کا نام ہے 666. یہ عدد ایک انسان کا عدد ہے، اور 666 ایک نظام ہے جو اس دنیا میں رائج کیا جائے گا. حیوان اس لیے کہا گیا کہ اس شخص جو فطرت ہے یہ حیوانی ہے، وہ حیوان فطرت ہے. جب وہ قہر کرتا ہے، نہ عورت دیکھے گا، نہ مرد دیکھے گا، نہ بچے، نہ کمزور. اگر ہم دانیل کی کتاب اس کا 8واں باب، دانیل کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 23ویں آیت سے 25ویں آیت تک اگر پڑھیں، 23ویں، 24ویں اور 25ویں آیت، کوشش کیجئے حوالہ جات لکھتے جائیے، ورنہ یہی سرمن آپ آج یوٹیوب پر بھی دیکھ سکیں گے. بار بار دیکھیے، حوالہ جات کو پڑھیے. یہی سرمن آپ ہمارے پیج پر بھی، سلویشن فار پاکستان یونیورسٹی کے پیج پر بھی دیکھ سکیں گے، لیکن ہم اس کو پڑھے جائیں. اس نے کہا چوتھا حیوان دنیا کی چوتھی سلطنت ہے جو تمام سلطنتوں سے مختلف ہے، اور تمام زمین کو نگل جائے گی اور اسے لتاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کرے گی. اور وہ 10 سے 10 بادشاہ ہیں جو اس سلطنت پہ برپا ہوں گے، اور ان کے بعد ایک اور برپا ہوگا، وہ پہلو سے مختلف ہوگا اور 3 بادشاہوں کو زیر کرے گا. اور وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا. یہ شخص تصویر پیش کر رہا ہے دانیل اس حیوان کی، اس حیوان حضرت انسان کی. اس کی تصویر ہمارے سامنے کھینچتا ہے، اور جو روح دانیل کو یہ تصویر بتا رہا ہے، یہ وہی روح ہے جو پولس کے ساتھ باتیں کرتا ہے، یہ وہی روح ہے جو پطرس کے ساتھ باتیں کرتا ہے، اور یہ وہی روح ہے جس نے پطرس کے گزین میں یوحنا عارف کے ساتھ باتیں کی. وہی روح ہے جو سب کے ساتھ باتیں کرتا ہے. اس لیے سارے بھید کا جواب بھی ایک ہی بن جاتا ہے. اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے جب خطا کار لوگ حد سے بڑھ جائیں، جب خطا کار لوگ کیا میں تجربہ کر سکتا ہوں جب سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں، حد تک پہنچ جائیں گے. اور آج جب خطا کار لوگ حد سے بڑھ جائیں گے تب خدا کا غضب نازل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ خدا کا غضب نازل ہوتا ہے. اور جب ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، بدی کرتے ہیں، تو یہ ہمارے گاؤں تک نہیں رہتے، ہمارے شہر تک نہیں رہتے. اگر آپ نینوا کے متعلق دیکھیں، آپ سدوم اور عمورہ کے متعلق لکھیں تو لکھا ہے جب ان کی شرارت پر شور خدا تک پہنچا، جب بدی حد سے بڑھ جاتی ہے، گناہ حد سے بڑھ جاتا ہے، تب ہماری بدی کا شور، ہماری شرارت کا شور ہے، یہ خداوند تک جا پہنچتا ہے. میرے عزیزو، اگر ہم خداوند کے پاک کلام میں یوحنا پہلا باب اس کی پہلی آیت کو دیکھ لیں، مکاشفہ 19 کی 20ویں آیت کو دیکھ لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی بھی ملک میں، کسی شہر میں جب شرارت حد سے بڑھ جائے تو پھر وہاں پر خدا غضب نازل کرتا ہے. اور یہ جو شخص ہے، اس کے لیے لکھا ہے، جیسا کہ مکاشفہ کی کتاب میں پڑھا، وہاں پر کہ یہ شخص
क्या होगा? दूसरो रमसशनास, दुनिया को समझने वाला, मजहबी लोगों के साथ भी ये मेल मिलाप रखेगा, आम लोगों को भी समझेगा, बड़ा फरोख्त का होगा और बड़ी इज्जत भी पाएगा। ये इसकी जो निशान लिखे गए हैं किताब मुकद्दस में, वो इसके ये लिखे गए हैं। ये रमसशनास होगा, दुनिया को समझने वाला हो। रमसशनास जो बात कर रहा है, पहले जानना असल में यह कहना क्या चाहता है, कि कौन सी रमस से बोल रहा है, कौन से लहजे से बोल रहा है, ये असल में चाहता क्या है मुझसे। वो दुनिया को भी समझेगा, दुनिया जो है कि असल में क्या चाहती है, दुनिया किस चीज को पसंद करेगी, मैं क्या काम करूं कि दुनिया मेरे पीछे लग जाएगी। ये सियासतदानों को अपने साथ मिलाएगा। और जब सियासतदान क्या करते हैं, सियासतदान जब अमेरिका बना तो क्या उस वक्त इन्होंने कहा था ये हम एक मसीही रियासत बना रहे हैं। जब कनाडा बना तो कहा ये तो मुकम्मल इस्राइल की तस्वीर होगी, इसमें हम यरूशलेम होगा, इसमें बैतलहम होगा, इसमें काला गलील होगा, हर चीज यीशु मसीह के मुताबिक हो, हमें यीशु का माहौल मिलेगा और सारे लोग उनके पीछे लग गए। सियासतदानों ने मजहब का इस्तेमाल भी किया और अलग सल्तनत बना ली। फिर ये मजहबी लोगों के साथ चलेगा और मजहबी लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ेगा और बड़ी इज्जत पाएगा। और अगर लिखा है कि वो काम भी करेगा, क्या करेगा? काम भी करेगा। आजकल के सियासतदानों की तरह नहीं कि वोट लिया और घर में बैठ गए, वो काम करेगा। और जब काम करेगा, अगर हम मुकाशवा की किताब उसका 17वां बाब और 10वीं आयत से 13वीं आयत तक अगर पढ़ दें तो हमारे लिए जरा बेहतर हो जाए। ये लोगों को समझता है, हालात को समझता है, वाक़यात को समझता है। जैसे भुट्टो ने किया था, भुट्टो ने क्या किया? भुट्टो लोगों को जानता था, समझता था ये कैसे चीज के मुताबिक है। उसने एक ही नारा दिया, रोटी, कपड़ा और मकान, और सारा मुल्क जो था उसके पीछे पड़ गया, उसके साथ का मिला। यहाँ तक कि हमारे मुल्क में उसके दौर में कोई अपोजिशन नहीं थी, इसलिए कि उसका नारा था रोटी, कपड़ा और ये भी लोगों को समझेगा, जानेगा। जी पढ़ने बेटे। 10वीं आयत जी 10 आयत से 3 और वो 7 बादशाह भी हैं, 5 तो हो चुके हैं और 1 मौजूद है और 1 अभी आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ अर्सा तक उसका रहना जरूर है। और जो हैवान पहले था और अब नहीं, वो 8वां है और उन 7 में से पैदा हुआ और हलाकत में पड़ेगा। और वो 10 सिंह जो तूने देखे 10 बादशाह हैं, अभी तक उन्होंने बादशाही नहीं पाई, मगर उस हैवान के साथ घड़ी भर के वास्ते बादशाहों का सा इख्तियार पाएंगे। इन सब की एक ही राय होगी और वो अपनी कुदरत और इख्तियार उस हैवान को दे देंगे। आमीन आमीन। ये जो चतुराई वाला शख्स है, ये अपने मंसूबों में कामयाब होगा, और जब ये कामयाब होगा तो इसको पसीनाई मिलेगी। क्यों पसीनाई मिलेगी? ये एक नारा मारेगा, इसका नारा होगा जंग नहीं अमन, जंग नहीं अमन। और लोग जानते हैं अगर अमन हो है तो हमारे पास कारोबार है, अगर अमन है तो हमारे बच्चों के पास तालीम है, अगर अमन है तो हमारी जिंदगी में खुशहाली है। और अगर अमन नहीं तो ना कारोबार, ना बच्चों के लिए तालीम, ना खुशहाली, कोई चीज नहीं है। इसलिए जब ये नारा मारेगा कि जंग नहीं अमन, तो फिर दुनिया के मुल्क, बादशाह सबके सब इस पर भरोसा करेंगे। और यहाँ तक
کہ بہت سے ملک اپنا اختیار اس کو دے دیں گے. پہلے جب روم وجود میں آیا اور روم نے اپنے آپ کو مذہبی اور دنیاوی دونوں حکومت کیا، اسے کہا جی آج سے ہماری حکومت مذہبی بھی ہے اور دنیاوی بھی ہے. اور فوراً برطانوی، آسٹریا، سوئٹزرلینڈ، فرانس، جرمنی، برطانیہ، ہالینڈ، بیلجیم، اسپین اور پرتگال، یہ 10 بادشاہ فوراً جا کے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، جن کے لیے لکھا ہے کہ ان میں سے درمیان سے ایک چھوٹا سینگ نکلا. دانیل کی نبوت سے پڑھ رہے ہیں، یہ وہ 10 سینگ تھے جو اس کے ساتھ آ ملے. اور آج بھی لکھا ہے 10 بادشاہ اپنا اختیار اس کو دے دیں گے. وہ 10 بادشاہوں سے اختیار پائے گا، اس لیے کہ اس کا نعرہ ہے اور یہ اپنی چھاپ کرے گا سب پر. اور چھاپ کیا کرے گا؟ 666 کے مہر لگائے گا. اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوگی جب ایک ہفتے کے لیے یہ سب کے ساتھ عہد باندھے گا، بہتوں کے ساتھ عہد باندھے گا. نہیں بھی امن ہے، جنگ نہیں ہے، امن ہے، جنگ نہیں ہے. بہت سا بھروسہ کیا جائے گا، اس کو سارا اعتماد بھروسہ جیتے گا لوگوں کا، اس کو اختیار دیا جائے گا اور یہ چھاپ سب پر کر دے گا. کیوں کہ جس پر چھاپ نہیں وہ کچھ خرید نہ سکے. آپ پیاز لینے جائیں گے آپ کو نہیں ملے گا، آپ پہلی جہاز لینے جائیں گے نہیں ملے گا، سبزی لینے جائیں گے نہیں ملے گے. اس لیے کہ پھر کرنسی نہیں ہوگی. کرنسی کیا ہوگا؟ نہیں ہوگی. وہ چھاپ جب آپ کے اوپر ہے اور آپ کی چھاپ بھی آپ کی کرنسی ہوگی، اس کے وقت میں کوئی غریب نہیں ہوگا اور ہر چیز جو چاہے آپ کو ملے گی. لیکن اس کے باوجود جو مزدور ہے وہ مزدوری کرے گا، اس کا انتظام چلنا ہے. بے شک ہر چیز ملے گی لیکن مزدوری کرے گا. یہ نہیں کہ امیر ہوگا کام کرے گا، ایسا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ چھاپ کی وجہ سے اس کا کنٹرول دوسرے کے ہاتھ میں ہے. جو آسائشیں دیتا ہے، جو دولت دیتا ہے، جو کار دیتا ہے، وہ کنٹرول بھی کرتا ہے. اور آج افسوس کی بات ہے، بہت سے لوگ اپنے ہی ملک میں پردیسی ہو چکے ہیں. میں نے بہت سے پاکستانیوں کو دیکھا، وہ پاکستان میں رہتے ہوئے لمبی لائن میں لگے ہوئے ہیں ایک وقت کا کھانا لینے کے لیے، اور وہاں سے بھی ان کا انکار دیا جاتا ہے. کل پیچھے ہو کے کھڑو، ادھر کو ہو، تو لائن توڑ رہا ہے. انتہائی انسلٹ کی جاتی ہے پاکستان کے اندر پاکستانی لوگوں کی ایک وقت کے کھانے کے لیے، اس لیے کہ ہماری شرارت کا شور آج بھی خداوند کے پاس پہنچ رہا ہے. لیکن جب سب ملکوں سے بھی اختیار پائے گا تو پھر ایک ہی کرنسی ہوگی، اس کرنسی کا نام 666 ہوگا. کوئی ویزے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کے کسی ملک میں جائے آپ کو ویزے کی ضرورت، آپ کا پاسپورٹ بیکار، آپ کا شناختی کارڈ بیکار، آپ کی چیک بک بیکار. ایوری تھنگ آپ کے اس چپ میں موجود ہے اور یہ چپ موجود میں آ چکی ہے. یہ میٹرولا کمپنی نے مونڈکس ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک چپ بنائی ہے جو چاول کے دانے کے برابر ہے. اس چپ کو انجیکٹ کیا جاتا ہے شیشے کے کیپسول میں رکھ کے آپ کے دہنے ہاتھ کے اس جگہ پہ یا پھر آپ کے ماتھے پر. اور شیشے کے کیپسول میں اس لیے رکھا جاتا ہے کہ آپ کے جسم کی گرمی سے یا آپ کے جسم کی حدت سے وہ چپ خراب نہ ہو جائے. پھر اور آج بہت سے لوگ لگوا بھی رہے ہیں. پاکستان میں بھی لگنا شروع ہوئی ہے لیکن بہت کم. جب چپ لگوا لیں گے پوری دنیا ایک کمپیوٹر کے کنٹرول میں آ جائے گی. آپ کا موبائل بے مقصد آپ جس سے بات کرنا چاہتے ہیں اس کا نمبر سوچئے
तो आपका राब्ता फौरन उस शख्स से तुम्हारी राब्ता होगा। इसलिए जब आपका ज़हन आपका रहा ही नहीं, उसको तो मास्टर कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है जो 666 के कंट्रोल में है। आपका मोबाइल बेकार, और आज मैं आज आपकी तो पहचान आज भी नहीं है। आप में से कोई नहीं क्या मेरी कोई पहचान है। आज आप फेसबुक पे चले जाए, नेट पे चले जाए, मसीह वहां पर लिखें रफीक मसीह, बहुत सारे रफीक मसीह वहां पर सामने लिखता है। आप लिखें आमर मसीह, बहुत सारे आमर सामने आ जाएंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे इनमें से कौन सा आमर है जिसके साथ मैं लिंक करूं। लेकिन जो आपका नंबर है, आपको एक नंबर गवर्नमेंट की तरफ से नागरा ने इशू किया है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। अगर आप उस नंबर को फीड करेंगे, वो नंबर फीड कर देंगे, तो फिर क्या होगा? आपका नाम, आपके माँ बाप का नाम, आपकी बीवी का नाम, आपके बच्चों का नाम, उनकी तारीख पैदाइश, ये सारा का सारा डाटा उस नंबर का है, आपके नाम का नहीं है। आपकी पहचान नंबर के साथ, और नंबर गेम शुरू हो चुकी है। रोम ने जब मजहबी और सियासी दोनों हुकूमतों पर कब्जा किया 306 में, तो उसे बड़ा इतने ये जाबर हो गई रोम की हुकूमत, इसलिए कि 10 हुकूमतों का इख्तियार इसके पास था। और जब 10 हुकूमतों का इख्तियार इसके पास था तो 1070 में 1070 में जर्मन का बादशाह हेनरी हस्टन, उसने कहा मैं भी तो बादशाह हूँ। और उनकी सजा क्या मिली कि रोम के बादशाह ने जो उस बादशाह को 3 दिन तक बर्फ पर खड़े रखा, 3 दिन तक। इस बात से कि रोम के बादशाह के होते हुए तेरी जुर्रत कैसे हुई कि तू कहे मैं भी बादशाह। थोड़ा सा आगे बढ़े, एक और चीज है। 1570 में मलका है बरतानिया, इसे कही मैं भी मलका हूं, इसकी रोम की कॉलेज सारी अथॉरिटी इसकी जब्त कर दी। लगा नहीं बेशक तुम मलका है, लेकिन आज के बाद तू कोई हुक्म नहीं दे सकेगी, कोई कानून नहीं बना सकेगी, तुझे रोटी मिलेगी, रहाइश मिलेगी, आसाइशें मिलेगी, लेकिन तेरा इख्तियार खत्म। इसलिए कि तूने रोम के बादशाह के होते हुए कहा कि मैं भी एक मुल्क की मलका। इतनी सख्त चीज में थी वो। लेकिन फिर क्या हुआ? 1797 में एक अनहोनी बात। क्यों हुआ ऐसा? इसलिए कि दानियल नबी कहते हैं कि उस हैवान को 1260 दिन का दिन दिया गया। कितना? 1260 दिन। जैसे ही 1797 हुए, यानी 1260 साल पूरे होने में 1 साल रह गया, फ्रांस की हुकूमत ने पोप साहब को गिरफ्तार कर लिया और 1798 में उनको अरेस्ट कर जेल के अंदर ही सजा दे दी, मौत की सजा दे दी, और किसी तरह से उंगली तक नहीं उठाई गई। पोप के लिए अपनी उंगली उठाई, लोग उंगली काट देते हैं, आंख को उठाए आंख निकाल देते हैं, लेकिन उस वक्त कोई नहीं बोला। इसलिए फिर नबूवत जो 1798 में पूरी हुई थी, 1260 दिन की, 1260 दिन 1798 में ही हुई थी। इसलिए नबूवत के पूरे होने पर कोई भी नहीं बोला। और उसके बाद एक हुक्म जारी किया गया कि आज के बाद रोम का तख्त खाली रहेगा, रोम का तख्त। और उस वक्त से अब तक रोम के पास बादशाह नहीं है, वो सब इंतजाम चलाते हैं और वो तख्त पर नहीं बैठते। लॉ है कि ये तख्त खाली रहेगा, किस लिए वो आएंगे हम देखेंगे। और पोप साहब भी कुर्सी सदारत पर बैठते हैं, तख्त पर नहीं बैठेंगे कभी, इसलिए कि वो खाली है आने वाले वक्त के लिए। दानियल 9 बाब उसकी 27वीं आयत तरह हम पढ़ दें, थोड़ा सा प्रेजेंट रह के। शायद मेरी बातें आपके अजीब हैं, लेकिन ये हमारे लिए समझना इंतहाई ज़रूरी है। हम उनके ऊपर बातें करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन ये हम सब के लिए जानना ज़रूरी है। दानियल
9वां बाब उसकी 27वीं आयत। जी और वो एक हफ्ता के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा और निसफ हफ्ता में शबिया और हदिया मौकूफ करेगा और वसीलों पर बजाने वाले मखलूक़ात रखी जाएंगी यहाँ तक कि बर्बादी कमाल को पहुँच जाएगी और वो बला जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाले पर वाक़या होगी। इसको ज़्यादा बेहतर समझना चाहते हैं तो मुक़द्दस पत्रिका की मार्फत लिखी गई इंजील जनिस का 24वां बाब और उसकी 15वीं आयत से 22वीं आयत तक कोई भी खुदा का खाना मगर तलावत कर लेगा। मुकाशफा की किताब मत्ती की इंजील 24वां बाब 15 से 22वीं आयत। बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरू चीज़ को जिसका जिक्र दानिएल नबी की मार्फत हुआ मुकद्दस मुकाम में खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तो जो यहूदिया में हो वो पहाड़ पर भाग जाए, जो कोठे पर हो वो अपने घर का असबाब लेने को नीचे ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। मगर अफसोस उन पर जो उन दिनों में हमला हो और जो दूध पिलाती हो। बस दुआ करो कि तुमको जाड़ों में या सब्बत के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी। जी पढ़े आगे। और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगज़ीदों की खातर वो दिन घटाए जाएंगे। उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो यकीन ना करना। खुदा के जिंदा और मुकद्दस किताब के पढ़े सुने जाने पर बड़ा खास बात। आमीन। पिछले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐलान किया कि यरूशलेम जो है ये दारुल खुलाफा होगा। इसराइल का क्या होगा? दारुल खुलाफा। सियासी बियान। दारुल खुलाफा ना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा दारुल इस्लामाबाद था, पहले कराची था, अब इस्लामाबाद है। क्या फर्क पड़ा? बस दारुल खुलाफा से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फर्क की बात है वो हमने आगे देखी कि ये एक हफ्ते के लिए सबसे अहद बांधेगा। सियासी लोगों से, मजहबी लोगों से, आम लोगों से, बिजनेसमैनों से, हर तरह के लोगों से ये अहद बांधेगा। अहद पर कायम भी होगा। जो ये जब 3.5 दिन गुजर जाएंगे, हफ्ते का बिल्कुल दरमियान होगा और यहूदी बड़े खुश होंगे और कुर्बानियां दोबारा शुरू हो गई हैं। हैकल बन गई है, कुर्बानियां शुरू हो गई हैं और लावी भी आ गए हैं, अब काहिन भी आ गए हैं, सरदार काहिन भी मौजूद है। बहुत बड़ी खुशी की बात है। सारे यहूदी अपने अपने कारोबार में लगे हैं। तभी 3.5 दिन जब हो जाएंगे, ये शख्स कुर्बानी को जला देगा हैकल की कुर्बानगाह पर, उस मकरूह चीज की जिसे सोर कहा जाता है। और जब ये सोर की कुर्बानी करेगा, यहूदियों की आंखें खुल जाएंगी, लोग परेशान हो जाएंगे। और यहाँ तो कहानत थे, यहाँ लावी थे, यहाँ खुदा की कुर्बानियां थी, ये कैसे हो गया? वो मुखालफत करेंगे और फिर कत्ल गायब शुरू हो गए। हैकल के अंदर से भाग जाएंगे लोग, वो जंगलों में भागेंगे, बियाबानों में भागेंगे, पहाड़ों पे कहेंगे हमें छुपाओ। लेकिन पुलिस ढूंढ कर, फौजी ढूंढ कर उन्हें पकड़ेंगे और हलाक करेंगे, इसलिए कि वो जिन जो है उनको छुपने नहीं देंगे। वो जहां भी होंगे वो तलाश कर लिए जाएंगे।
और जब यहूदियों की आंखें खुलेंगी फिर क्या होगा? अगर मुकाशवा की किताब उसका 19वां बाब और 11वीं आयत से 16वीं आयत में पढ़ो। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है और उसकी आंखें आग के शोला हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ महीन दतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है और वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा और कादर मुतलिक खुदा के सब गजब की महके हौज में अंगूर रौंदेगा और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का हालेलुया। यीशु आ जाएगा जब ये सारा कुछ होगा, कुर्बानी गुजरानी जाएगी, बड़ी अफरा तफरी होगी, कत्ल गारत होगी, सब बादशाहों का बादशाह मेरा यीशु और मौजूद होगा और उनको हलाक करेगा। लिखा बगैर हाथ हिलाए वो अपने मुंह के कलाम से उनको हलाक कर देगा। वो खुदा के मुंह के कलाम से हलाक हो जाएंगे। और शैतान की रूहें, अगर मुकाशवा 16 बाब और उसकी 12वीं आयत से 16वीं आयत तक पढ़ लेना, हवाले कुछ ज्यादा है लेकिन मैंने कहा ये स्टडी सर्मन है इसलिए आपको हवाले तो देखने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप नहीं लिख सकते घर में जाके यूट्यूब पर आप इसको देख सकेंगे। जी। मगर जमीन ने उस औरत की मदद की और अपना मुंह मुकाशवा खोलकर 16 बाब 12वीं से 16वीं है, 16 बाब 12वीं से 16वीं है। और छठे ने अपना प्याला बड़े दरिया यानी फरात पर उल्टा और उसका पानी सूख गया ताकि मशरक से आने वाले बादशाहों के लिए राह तैयार हो जाए। फिर मैंने उस इस्तहा के मुंह से और उस हवान के मुंह से और उस झूठे नबी के मुंह से 3 नापाक रूहें मेंढकों की सूरत में निकलते देखी। ये शैतान की निशान दिखाने वाली रूहें हैं जो कादिर मुतलक खुदा के रोज़े अज़ीम की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए तैयार सारी दुनिया के बादशाहों के पास निकल कर जाती हैं। देखो मैं चोर की तरह आता हूँ, मुबारक वो है जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है ताकि नंगा ना फिरे और लोग उसकी बरहंगी ना देखें। और उन्होंने उनको उस जगह जमा किया जिसका नाम अबरानी में हर मजदून है। और 7वें ने जी आगे पढ़े नहीं बस लिखा है वो सारी जो शैतान की रूहें हैं, शैतान की ताकतें हैं, शैतान की फौजें हैं, ये सारी की सारी जमा हो जाएंगे हर मजदून के मैदान में मसीह के खिलाफ लड़ने के लिए। और इन सब को कैसे जवाब दी जाएगी? 3 मेंढक, उनके मुंह से क्या निकलेगा? 3 मेंढक। और ये 3 मेंढक जो है ये दरअसल पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। ये 3 सैटेलाइट हैं, सैटेलाइट एशिया, सैटेलाइट अमेरिका और सैटेलाइट अफ्रीका, तीनों 8-8 घंटे नेट के कंट्रोल में होते हैं। और जब इन पर ऐलान होगा जब ऐलान होगा तो ये तीनों मेंढकों की वजह से, यानी तीनों जो सैटेलाइट है, जो बैन अवी इंटरनेट का सिस्टम है, उसके वसीले पूरी दुनिया में ये ऐलान जाएगा, ऐलान होगा। और अपने सारे हथियार लेकर जमा हो जाओ, कोई तोप नहीं बचनी चाहिए,
कोई टैंक नहीं बचना चाहिए, कोई आपको हवाई जहाज नहीं बचना चाहिए, कोई सिपाही अपने एमुनेशन ना भूल जाए, कोई सिपाही अपनी गन ना भूल जाए। सब के सब हथियार, तमाम हथियार लेकर जमा हो जाओ और लेकर के हर मजदूर में जमा होंगे। और वहां पर एक और काम होगा, दरिया फरात इनके रास्ते में रुकावट बनेगा, दरिया फरात इनके रास्ते में लेकर उसका भी हल निकाल लिया गया। तुर्की ने अतातुर्क डैम एक तैयार किया है, अतातुर्क डैम उसका नाम है, और वो डैम इतना बड़ा तुर्की ने बनाया है कि जो 6 दिन तक दरियाए फुरात के सारे पानी को अपने अंदर रोक के रख सकेगा। 6 दिन तक वो दरियाए फुरात का जितना पानी है उसमें जमा होता रहेगा। आगे से दरिया खुश्क हो जाएगा, सारी बोझें बाहर जाएंगी, आगे निकल जाएंगी। अब फरात उनका रास्ता नहीं रोक सकेगा और वो आगे पहुंच जाएंगे और तमाम टेक्नोलॉजी, तमाम असला, तमाम हथियार लेकर वो मसीह के खिलाफ हर मजदूर में जमा हो गए हैं। वो जंग करना चाहते हैं। ये सारी 666 की फौजें हैं जिसके पास सारे इंसानों का इख्तियार है, सारे बादशाहों का इख्तियार है, सारी हुकूमतों का इख्तियार है, सारी हुकूमतें उसके साथ जमा है और वो मसीह के खिलाफ लड़ने को आए हैं। लेकिन कुरान मुकद्दस में लिखा है बगैर हाथ हिलाए हलाक हो जाएंगे। मुकाशवा की किताब 19 बाब उसकी 17वीं और 18वीं आयत पढ़ लें। मुकाशवा की किताब 19 बाब उसकी 17वीं और 18वीं आयत। फिर मैंने एक फरिश्ता को आफताब पर खड़े हुए देखा और उसने बड़ी आवाज से चलाकर आसमान में के सब उड़ने वाले परिंदों से कहा, आओ खुदा की बड़ी ज़ियाफत में शरीक होने के लिए जमा हो जाओ, ताकि तुम बादशाहों का गोश्त और फौजी सरदारों का गोश्त और जोर आवरों का गोश्त और घोड़ों और उनके सवारों का गोश्त और सब आदमियों का गोश्त खाओ, खुआ आज़ाद हो, खुआ गुलाम, खुआ छोटे, खुआ बड़े। आज किसी घर में शादी हो, उसने एक बकरे की पकाई हो, एक चिकन की पकाई हो, एक बीफ की पकाई हो, तो कितनी तारीफ करेंगे। वाह जी वाह जी वाह जी, तीनों किस्म का खाना। आज जाके सब जगह बगैर हाथ हिलाए हलाक हो जाएंगे। तब फरिश्ता आसपास पर खड़ा होगा, दावत दे रहा परिंदों को, आ जाओ, दावत है, आज तुम्हें बकरे की जगह बादशाहों का गोश्त खिलाता हूँ। आ जाओ, आज तुम्हें चिकन की जगह मैं फौजी सरदारों का गोश्त खिलाता हूँ। आ जाओ, आज तुम्हें मैं मुर्गी की जगह, आज तुम्हें मैं बीफ की जगह पर अमरा का गोश्त खाने को देता हूँ और सारी डिशेस तैयार है। दावत खुदा के फरिश्ते की तरफ से पूरी दुनिया के परिंदों को, आओ और खा जाओ इनको जो जमा हुए हैं मेरे यीशु के साथ जंग करने के लिए। हालेलुया हालेलुया। जो खुदा के खिलाफ जंग करता है उसका यही हाल हो जाता है। लिखा है सफेद घोड़े पर सवार बादशाह अपनी फौज के सवारों के साथ मुंह की तलवार से, मुंह की तलवार क्या है? खुदा का कलाम। और कलाम क्या है? कि खुदा के कलाम से कलाम, खुदा के कलाम की मुजस्सम हुआ, हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के, यानी वो मेरा यीशु था। और यीशु काम करता है, काम। यीशु ने लाजर की कब्र पे गए, क्या कहा? लाजर कब्र से अंदर कौन गया था? कलाम। यीशु ने क्या अंदर कलाम गया और कलाम में ताकत है। लाजर कफन में बंधा हुआ बाहर आ जाता है, पानी को हुक्म देता है। कलाम खुदा अपने हाथ से नहीं रोकता, लेकिन अब खुदा का कलाम निकलता है मुंह से, पानी भाग खड़ा होता है। खुदा का सारा पानी एक जगह जमा हो जाए,
सारे का सारा पानी समुद्र बनकर एक जमा हो गया, क्या आपने खिलाड़ी हाथ से लाके और नारियल डाल के पानी को जमा किया, और वो काम मेरा यीशु है तो काम करता है। और आज वो आवाज कहती है, आप सबका नाम नहीं लेगा है, मैं तुझे प्यार करता हूँ। पास्टर रफीक, मैं तुझे प्यार करता हूँ। पास्टर अमन, मैं तुझे प्यार करता हूँ। पास्टर इरफान, मैं तुझे प्यार करता हूँ। वो आप सबको प्यार करता है और उसके प्यार का ही ये निशान है। लेकिन जिन ने छाप ली, जब उनकी आँख खुल जाएगी, ओ ये तो मुखालिफ मसीह है, भागेंगे पहाड़ों की तरफ, जंगलों की तरफ, लेकिन उनको कत्ल कर दिया जाएगा, इसलिए कि उन्होंने बल्ले के लहू का इनकार किया और 666 की ताबेदारी की। इसलिए तो ये सब हम जान लें। अगर मुकाशफा की किताब उसके 20वें बाब की 4थी आयत को पढ़ लें। 20वें बाब की 20वीं 20वें बाब की 4थी। फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की परस्तिश की और ना उसके बुत की और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हो लिए, बाकी मुर्दे जिंदा न हुए। पहली क़यामत यही है। जी, जिन लोगों ने छाप नहीं ली उनको कहाँ बिठाया जाएगा? दस्त के ऊपर उनको अदालत दी जाएगी। अब तुम इंसाफ करो इन कौमों का, और कितना ही खूबसूरत मंजर होगा जब एक बड़ा तख्त लगा होगा और उसके ऊपर पानी जमीन बैठे होंगे और सारे कौमें उनके सामने खड़े होंगे और वो पूछ रहे होंगे, उनका इंसाफ कर रहे होंगे। पानी अहमद बैठे होंगे, एक अदालत अंदर लगी हुई है, वो इंसाफ कर रहे होंगे। तीसरे तक पानी आशक बैठे हैं, वो इंसाफ कर रहे होंगे। और ये सारा का सारा अजर क्यों मिलेगा? इसलिए कि हमने उस हैवान से प्यार नहीं किया, बल्कि किसको अहमियत दे? अपने यीशु को हम ताबेदार रहे, और जो ताबेदार रहेंगे उनको इज्जत मिलेगी। हालेलुया। कौमों का इंसाफ करेंगे। लेकिन मैं बहुत से लोग आज इसलिए मैं कहता हूँ, बच जाइए, कट जाइए बुरी सोहबत से, बुरे नवासों से, बुरी बातों से कट जाए। आज भी बहुत से लोग तो मन से भरे हुए वो मसीही हैं, लेकिन लोग अपनी दौलत के सबब से, अपने पैसे की वजह से पास वालों को हकीर जानते हैं, छोटा जानते हैं। उनकी इज्जत तो समझते हैं कि शायद ये हमारे पैसे पर फल रहा, इसलिए उसकी थोड़ी बहुत जी तो कहते हैं, लेकिन वो इज्जत नहीं करते, इसलिए कि घमंड, गरूर, तकब्बुर पैसे का उनके अंदर है। लेकिन अगर हम दूसरा तस्लीक के दूसरा उसका दूसरा बात और उसकी 5वीं, 6वीं और 7वीं आयत को देखिए। क्या तुम्हें याद नहीं कि जब मैं तुम्हारे पास था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? अब जो चीज उसे रोक रही है ताकि वो अपने खास वक्त पर जाहिर हो, उसको तुम जानते हो, क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता जाता है, मगर अब एक रोकने वाला है, और जब तक कि वो दूर ना किया जाए रोके रहेगा। उस वक्त वो बेदीन जाहिर होगा, इसे खुदावंद यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से हलाक और अपने आमद की तजल्ली से नीज़ करेगा, और जिसकी आमद शैतान की तासीर के मुआफिक हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों के साथ, और हलाक होने वालों के लिए नाराजगी के हर तरह के धोखे के साथ होगी, इस वास्ते कि उन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार न किया जिससे उनकी नजात होती। इसी सबब से खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तासीर भेजेगा ताकि वो झूठ को सच जाने, और जितने लोग हक का यकीन नहीं करते
बल्कि नाराजगी को पसंद करते हैं वो सब सजा पाएंगे। मैं कहूँगा आप तक इब्लीस आज आप पर हमला करना चाहता है, वो आज आप पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन लिखा है एक चीज उसे रोके हुए है, एक चीज रोके हुए है, एक चीज उसे रोके हुए है। और वो चीज कौन सी है जो उसको इब्लीस को रोके हुए है? वो खुदा का पाकरू है जो ये पेंटिकोस्ट के दिन नाज़िल हुआ और आज लाखों नहीं करोड़ों लोग रोज़ से मामूर हैं, वो भरे हुए हैं खुदा के से, और वही रोज़ कुछ इब्लीस को भी रोके हुए है। लेकिन मैं आप लोगों की खुशखबरी देता हूँ, आप लोगों की खुशखबरी, जब ये वक्त आएगा उससे पहले हम आसमान पर जाएंगे। यहाँ मौजूद नहीं, दोगले रह जाएंगे, दोगले जिहड़े यसु यसु भी कहते ने ते दरबारा दा दाम भी दोहरी पॉलिसी। मैं उनको भी दोहरी पॉलिसी वाला कहता हूँ, जो 10 बजे का टाइम हो तो 11 बजे आते हैं, 10 बजे का टाइम 10 बज के 5 मिनट पे आते हैं, वो भी खुदा को प्यार करने वाले नहीं है। गौर कीजिए अपनी बात, क्योंकि हमारा खुदा तरतीब का खुदा है, और जो तरतीब के खुदा को नहीं मानता खुदा भी उसको नहीं मानता। आइंदा से इस बात का ख्याल रखें। अगर खुदा कभी कह दे नहीं मैनू यार छेती है, आज मैं 2 घंटे पहले ही तेरी जान लेनी, अगर खुदा कह दे नहीं ऐतकी यार मैनू बड़ा और काम है, ऐतकी ते मैनू पादरी आमन ने कहता जी मेरे बच्चों की फीस का मसला है, ते अभी बाकी पादरियों में ऐसे में कोई फीस नहीं देनी, ऐतकी उहदे नाल वादा कर ले, क्या करेंगे आप? खुदा वक्त पर हर चीज मुहैया करता है, और यही तो कहता है कि हम भी वक्त पर अपने खुदावंद की परस्तिश और ताज़ीम करें। कुरान मुकद्दस में लिखा है, जरा हवाला निकालें मुझे, वो मुबारक है वो जिसका सूट अच्छा है। निकालिए, कहाँ लिखा है? हवाला निकालें जल्दी से। किसी की बाइबल में नहीं लिखा, हो सकता है ये लिखा हो कि मुबारक है वो जिसकी कोठी अच्छी है, ये भी नहीं लिखा। मुबारक है वो जिसका बैंक बैलेंस अच्छा है, सोचते मान लो क्यों? तो फिर क्यों इन चीजों के पीछे हम भागते? जब लिखा ही नहीं कि मुबारक है जिसका रुपया पैसा है, क्यों मैं रुपये पैसे के मुझे भागता हूँ? जब लिखा ही नहीं कि मुबारक है वो जिसकी कोठी अच्छी है, मैं क्यों कोठियों के पीछे भागूं? जब लिखा ही नहीं कि मुबारक है वो जिसका सूट अच्छा है, तो मैं क्यों अच्छे नमाज़े की तरफ भागता हूँ? आज 4 जून 2021 वो दिन है जब खुदा का पाक आप में से हर एक के पास खड़ा है, वो आपके अंदर आना चाहता है। वो कहता है देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ हूँ, मेरे लिए दरवाजा सुनकर दरवाजा खोल, मैं अंदर आकर तेरे से खड़ा रखूंगा। आज 4 जून को खुदा का पाक आप में से हर एक के अंदर सुकूनत करना चाहता है, वो आपको भरना चाहता है, वो आपको कुव्वत देना चाहता है, लेकिन उसके लिए क्या है? अननिया जिसने जिस्मा किससे लिया? शागिर्दों से। फाकत में फाकत रखने में, रोटी तोड़ने में, दुआ करने में, तालीम पाने में मशगूल है। लेकिन जब लालच आ गया, पैसे का लालच आ गया, क्या बच गया? पतरस की रिफाकत में बचा ली। अलीशा की एक कमजोरी है, एलिया ने अपने पीछे जानशीन छोड़ दिया। एली ने अपना जानशीन छोड़ा शमूएल, लेकिन अलीशा ने अपना कोई जानशीन नहीं छोड़ा जो उसके पीछे उसकी गद्दी को संभाल सके। ये उसकी कमजोरी थी। लेकिन एक था उसका शागिर्द, क्या हुआ? कोड़ी आता है, जवान कोड़ी, उसको तकलीफ है कोड़ की, छोटे बच्चे की गवाही के वसीले जो कि गुलामी की हालत में है, वो गवाही सुनता है। वो अगर मेरा आका मेरे मुल्क में होता तो
ये कोड़ी ना रहता। वो आता है और आज ही जब अलीशा के सामने जाता है, अलीशा उसको कहता है 7 बार गोते मार। वो गोते मारता है, उसका कोड़ काटता रहता है। वो अपना बड़ा मालो मता सोना चांदी रात के बोरे गधों पर लदे हुए लेकर आता है। लेकिन अलीशा खुदा का बंदा था, लालच लेना हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसको वापस भेज